بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المزمل۔ اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں آئیں گی۔ یہ ہے 73ویں صورت، تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورت، یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک قرآن انداز۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجیے، حدیثیں سنتے ہیں آپ دعاؤں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے، تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ قیام اللیل کا حساب یہ من قام رمضان ایمان، وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں دھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کی چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کرے نا رمضان، قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو۔ راتوں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصف ہو، آدھا اس کا، اب ان کو قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2 تہائی، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ مختصر کر دی گئی، جب فرض نماز عادل تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن کو، چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کی فکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال دیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کی کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ تیاری کیا ہے؟ اگر کہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن پمپ اندر جذب، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، واقوا مقیلا، جو قول ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے، کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کو دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا، رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب، بالکل اس پر ہم نے کہا تمتع تبتیلا، رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرح سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، تمکن اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، کوئی سمجھیے اپنے آپ کو، جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کون ساتھ نہیں لائے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں، یہ ہر شخص ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کر جانکاری سب سے کر سے ہو اللہ کے ساتھ۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا وہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، سب واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لگمان کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلام علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ اسے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات کی جا سکے، یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات کرے ذرنی، مجھے چھوڑ، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، وہ مہکلہم قلیلا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دے مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، ولا تعجل علیہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے، ان پر جلدی نہ کیجیے، مہکل قل، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ، مہکلہم امہلہم رویدا، تو ان کو مہلت دیجیے تھوڑی دیر کے۔ انا لدینا انکالا و جحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہے، آگ ہے، وطعام ذا غصۃ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب، یہ جا رہے کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دیں گے، رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے
उतरते हुए, जैसे आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे, वो फिसल रही है इधर से उधर, ये पहाड़ कोई हिमालय, ये भी उस तरह का पौधा बन के और फिसल कर और सब बराबर हो जाएगा, ना इवद रखी है ना हमका, ना कोई पेड़ रहेगा, ना कोई मोड़ होगा, ना कोई और सीधी चकियल दो। इन्ना अल्लाह इलैकुम रसूल, देखो लोगो है कुरैश, हमने तुम्हारी तरफ अपना रसूल भेज दिया है, शाहिदन अलैकुम, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर गवाह बनेगा, यहाँ तुम्हें गवाही देगा अपने कौल और अपने अमल से हक की, और वहां तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, "ऐ अल्लाह मैंने इनको पहुंचा दिया था।" कमा सल्लल्लाहु इला फिरौन रसूला, जैसे कि हमने भेजा था फिरौन की तरफ भी अपना रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फासा फिरौन रसूल, तो फिरौन ने भी रसूल की यानी हजरत मूसा की माशियत की, उनका नाफरमानी की, फाखज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो हमने पकड़ लिया उसको बड़ा बवाल वाली पकड़, फकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, अब अगर तुम कुफ्र करोगे तो तुम कैसे बच जाओ। फिरौन नहीं बचा, कौम नूह नहीं बची, कौम आद नहीं बची, कौम समूद नहीं बची, कौम शुऐब नहीं बची, अबूरा और सदूम की बस्तियां नहीं बसी, तो कैसे बदलाओ। फकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शयबा, उस दिन जिस दिन का के जो दिन के बूढ़ों बच्चों को बूढ़ा कर दो, क़यामत का दिन, उसके शदाई, उसकी सख्ती है। अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिही, आसमान उसके साथ फट पड़ने को है, यानी वो फ़कुलत फिस समावाति वल अर्द, वो कहीं बाहर से तो नहीं आएगी वो क़यामत, वो इन्हीं आसमान और ज़मीन के अंदर जो है वो उसी में इनहेरेंट, अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिही, आसमान फटता है, कान वादुहु मफ़ऊला, और अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। इन्न हाज़िही तज़किरा, यकीनन ये याद दहानी है, तज़किरा है, नसीहत है। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो कोई भी चाहे वो अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले, सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। आज ही बिस्मिल्लाह करो, आज ही तौबतुन नसूह करके घरों में दाखिल हो। अब ये है 19 आयत, लेकिन इसके बाद ये एक आयत पर पूरा रुकू मुश्तमिल है। इसके बारे में बहुत असल में बहुत परेशान रहा इसको समझने में, और मैं हैरान हूँ कि तफासिर ने कहीं मुझे कोई इसके लिए बात नहीं मिली। इत्तेफाकन है कि मैं अलिफ कान फी उलूमिल कुरान उसका मुताला करते हुए मुझे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का एक कौल मिल गया कि ये एक आयत नहीं दो आयतें। ये रिवायात पर खत्म हो गया। कोई कहता है कि ये इस साल के बाद आई, कोई कहता है 16 माह बाद आई, कोई कहता है ये आयत जो है ये मदनी है, कोई कहता है 11 साल के बाद वगैरह। तो इस हवाले से ये कि समझ में नहीं आता था कि क्या मसला क्या है, इस कदर मुख्तलिफ आरा क्यों है। तो समझ में आया कि ये दो हिस्सों में आयत नाज़िल हुई है, लेकिन अब इसको एक आयत शुमार करेंगे जो उन्होंने बताया। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। ए नबी, आपका रब जो है जानता है कि आप भी खड़े रहते हैं तकरीबन 2 तिहाई रात और निस्फ़ रात और रात का तिहाई हिस्सा, व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक, और ये कि आपके साथ जो जमात है उनमें से लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। वल्लाहु मुक़द्दिरुल लैला वन नहार, अल्लाह ताला ने ही रात और दिन का एक अंदाजा मुकर्रर किया है। ये मुशक्कत ज्यादा देर नहीं झेली जा सकती। लिहाजा अलिम अल्लन तुहसूहु, अल्लाह जानता है, इसके इल्म है कि तुम इसकी पाबंदी नहीं कर सकोगे। फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम पर नरमी फरमाई, शफ़क़त फरमाई, रहमत की नज़र की। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तो जितना आसान हुआ करे तुम्हारे लिए, मुयस्सर हुआ करे, यूसुफ आसान उतने रात को पढ़ लिया था। अलिमान से अब यहाँ ये आयत का पहला हिस्सा है कि जो मेरे ख्याल में 1 साल बाद या 11 माह बाद नाज़िल हो गया। यानी ये कि अब ये पाबंदी के कम से कम एक तिहाई, और ये कि कोशिश करो कि आधी या 2 तिहाई पाबंदी खत्म, निकला खड़ा हो आसानी के साथ। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, बकिया हिस्सा जो है ये मेरे नज़दीक बिल्कुल हिजरत से मुत्तसिलन क़ब्ल नाज़िल हुआ है। वो 11 साल वाली रिवायत इस हिस्से पर है। अलिमान सयकूनु मिनकुम मरज़ा, अल्लाह के इल्म में है कि कुछ लोग भी तुम में से जो मरीज हो जाएंगे, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा क़यामत में। व आखरून यदरिबूना फिल अर्ज़ यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, और लोगों में ज़मीन में सफ़र करने पर मजबूर होंगे अल्लाह के फज़ल की तलाश में। व आखरून युक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह, अब या तो ये हिस्सा मदनी हो सकता है, लफ्ज़ क़िताल का ज़िक्र आ रहा है, या ये कि बिल्कुल हिजरत से मुत्तसिलन क़ब्ल, और बहुत लोग होंगे अल्लाह की राह में क़िताल करेंगे। जब क़िताल करेंगे दिन भर की मुशक्क़तें होंगी, तो अब रात भर खड़े रहना, 2 तिहाई रात खड़े रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, ये तो उसी जो भी तुम कर सको, जितना आसान हो उतना पढ़ लिया करो। व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, अब नमाज़ पंजगाना का हुक्म आ गया सन 11 में, जबकि मेराज वाक़ई हुई। क़याम 5 नमाज़ों का को है, ये गोया कि अब बदल है क़यामुल लैल। रमज़ान का मामला मुस्तस्ना रख दिया, 11 महीने वो है रमज़ान इस काम के लिए है कि ये शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ की तजदीद का महीना है। यहाँ क़यामुल लैल, जैसा कि आया उस खुतबे में भी जो हुज़ूर का खुतबा नकल किया है हज़रत सलमान फ़ारसी ने, जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, अल्लाह ने इसका रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ कर दिया, वो तो सब रखें, मज़दूर है, रीत दोता रखना होगा। इसलिए यही लोग होंगे जिन्हें जंग में भी जाना पड़ेगा कि नहीं, ये सख्तियाँ नहीं झेलेंगे तो याद नहीं होंगे, सर तो गर्म चशीदा नहीं होंगे तो कैसे जाए। लेकिन ये है कि आम रमज़ान के अंदर आकर इसको ये कि रात के वक्त पर है इसको रख दिया। व जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, ये आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया, फ़र्ज़ नहीं। हज़रत उमर ने उसका ये किया कि एक हिस्सा तो ऐसा कर दिया कि कोई भी शख्स महरूम न रहे, चले 1 घंटे के अंदर, वो तो हज शख़्स हो लिया करे। लेकिन उनका सुनना ये था कि जो भी
कारी पढ़ रहा है वो समझ रहे हैं, हमारे यहाँ वो सुनना ही सुनना रह गया, बाकी समझ तो है ही जीरो। लेकिन ये है जो असल में खराबी वाकई हुई, वरना वाकई ये है कि सिर्फ इस्तेमाल कुरान उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। जो लफ्ज जो है उनके कल्ब के अंदर उतरता चला जा रहा है, उनकी अपनी जबान है, जबान यारमन जो है हमारा वाला मामला नहीं है कि जबान यारमन कुल की वमन कुल की नमी दानो। तो फरमाया वाकई मुसलाता व आतु ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो भी तुम आगे भेजोगे अपनी जान के लिए, अपने भी अपने फायदे के लिए जो खैर भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, उसे मौजूद पाओगे अल्लाह के पास। किस हाल में हुआ खैरन, वो बेहतर होगा उससे जिस हाल में जो तुमने भेजा था अल्लाह के पास। वो 700 गुना होगा, वो किस नौयत का होगा, खैरन उससे बेहतर होगा जो तुमने दिया था। वो आप अजरा और अजर के एतबार से बहुत बड़ा, वो माल को देगा इसमें 700 गुना करके लौटा कर देगा, लेकिन इसके अलावा और अजर देगा अपने फضل से, अपने पास से। बस्तगफिरुल्लाह, और इस्तिगफार करो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है, बख्शने वाला है और रहमत फरमाने वाला है। इंसानों में नेकी के बड़े मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद तसव्वुरात तो है। पहली बात तो बड़ी अहम ये है कि बुरे से बुरा आदमी भी नेकी के किसी न किसी काम को सरअंजाम देकर अपने ज़मीर को मुतमईन, मैं डाका तो डालता हूँ लेकिन बेवाओं और गरीबों की मदद भी तो करता हूँ, मैं फला काम तो करता हूँ लेकिन फला मज़ार पर जाकर मैंने चादर भी तो चढ़ाई है, वहां देख भी तो पेश की है। उसकी वजह क्या? अभी जिस चीज का जिक्र हो रहा था ज़मीर, कॉन्शन, ये इंसान की बातनी शख्सियत का एक बहुत अहम। ज़मीर का लफ्ज़ इस मानी में कुरान में नहीं आया, लेकिन पुरानी इस्तिलाह है नफ्स लव्वामा, वो नफ्स जो अंदर से मलामत करता। देखो तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ किसी और ने मलामत की या नहीं की, तुम्हारे अंदर कोई शय है जो मलामत कर, देखो तुमने फलां शख्स का दिल तोड़ दिया, ये अच्छा, ये है लव्वामा जिसकी कसम खाई गई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति व ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्स लव्वामा हर इंसान में है, और जैसे हमारे इस ज़ाहिरी वजूद के तकाज़े हैं, भूख लग गई है, प्यास का, इसे कपड़े की जरूरत है, मौत के असरात से बचाओ, ये जो मानवी शख्सियत हमारी अंदर है, ये भी कुछ दिमाग करती, और इंसान अपने आप को मुतमईन करता, रैशनलाइज करता। ठीक है, ये तो खराबियां है, लेकिन मैंने ये काम तो आखिर की है। इंसान के गिलास भी अपने ज़मीर को, अब देखिए हमारे यहाँ के मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ तशव्वुरात है नेकी की जगाई। अरे है मजहबी तबका है, इसके नजदीक असल अहमियत रिचुअल्स की है, इबादात की है, रसूमात मुआमलात में वो धोखा दे रहे, सौदा करके फिर गए, उनके दिलों में डर भी नहीं है, साहिलों को धुतकारते, लेकिन एक एतबार से बहुत सूदी कारोबार करते। ठीक है भाई, मैं सूदी कारोबार तो करता हूँ, मैंने मस्जिद में तो बनवाई है, मैंने मस्जिद में झाड़ भी तो लगवा दिया है, मैंने मस्जिद में कालीन भी तो बिछवाया है, तो नेकी का एक तसव्वुर, इसका बिल्कुल बड़ा एक तसव्वुर है। जदीद तालीम याफ्ता तबकात, आपने बारहा सुना होगा गुफ्तगू, भाई असल नेकी ये है कि कोई किसी को धोखा, झूठ, वादा पूरा, अपना फर्ज सही कौसा, कहीं मुलाजिम है तो अपने फराइज सही, बाकी रह गई नमाज रोजा, ये तो इंफरादी बातें हैं, ये कोई करता है तो अपने लिए, नहीं करता है तो कोई बात, ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स, और ये हमारे माशरे से जदीद तालीम याफ्ता तबकात का तसव्वुर नेकी, और हमारे तलीम उलमा और उनके जेर असर जो आवाम है उनके नेकी में जमीन व आसमान। आपको मालूम है कि अपनी जिस्म फरोश औरतें जो है वो भी नेकी कोई काम कर, आप देखेंगे मुहर्रम में स्याह पे पहन के जुलूस के आगे आगे जा रहे, सबीले लगा रही, मुख्तलिफ बाजारों में जब वो सफा बह जाती है, धमाल खेलती है, वही से वो भी अपने आप को मुतमईन। मशहूर है एक वाकया शहनशाह आलमगीर औरंगजेब का, उसने दिल्ली में गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी। अब जाहिर बात है जिनका ये पेशा था उनका गंदा कदम जो आमद, लाख कोशिशें की लेकिन औरंगजेब का बस उन्होंने एक अजीब तरह की, वो दरियाए जमुना बिल्कुल साथ बहता था, ये किला इससे चल अब तो जरा फास्ट, तो एक कश्ती में वो जमा हो गए साजिंदे भी और साथ, और काते बजाते, उन्हें मालूम था फला वक्त जो है बादशाह धरोके में बैठते दरिया की सैर करता है, वहां से गुजरे और एक शेर गाते हुए, दरक हुए नेक नामी मारा गुजर न दारूं, गर तू नमी पसंदी तकदीर अदा, दरक हुए नेक नामी, ये नेकी जो है इसके कूचे में हमारा गुजर ही नहीं, दरक हुए नेक नामी मारा गुजर न दारूं, ये तो अल्लाह की तरफ से फैसला है, उसकी मुकर्रर करता तकदीर है। अगर तू नबी पसंदी तगयीर कुल कज़ारा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो तकदीर बदल दे। तो बादशाह हंस, और उसने कहा कि ठीक, गाने बज, तो हर एक तबके का अपना एक तसव्वुर है नेकी का। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बड़े बड़े डाकू जो है वो अपने इलाके के बेवाओं ने की, ऐसे जहाज दरिंदगी सफाकी, इंसानी जान की कोई हैसियत, तो नेकी असल में किस शय का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है, नेकी हकीकत में क्या है, वो है इस आयत का मज़मून। मैं मिसाल दिया करता हूँ, एक आम किस्सा है कि किसी गांव में पहली मर्तबा हाथी आया। अब वहां नाबीना लोग जो थे उन्हें भी पता चला एक अजीब जानवर आया है, वो आए और किसी ने उसकी टांग को टटोला, उसने कहा हाथी एक सतून के मानिंद है, किसी का उसके कान के ऊपर हाथ पड़ा, उसने कहा छाछ के मानिंद है वो, किसी ने पेट को टटोला, बहुत बड़ा ढोल है वो। बिल्कुल यही मामला है नेकी के तस्वीर के बारे में।
اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل چمن میں، ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں. کسی نے نیکی کا ایک حصہ نہیں کیا، کسی کا نہیں کیا، کسی کا حصہ. وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا بس.